Hello my dear students, good morning to all. In previous class we have studied that addition of length, subtraction of length, also over multiplication of length, and yesterday we have studied division of length. Now today we will study word problem based on this, all these four operations, means addition. Sometimes we have to do addition, subtraction, multiplication as well as division. Now here example first given, third example. A line drawn on ground was 25 meter 80 centimeter long. It was extended at one end by 14 meter 12 centimeter. How long is it now? A line मतलब ये ऐसी line means straight line like this. A line is drawn on where ground was. The length of this line is given. How much length given? 25 meter and 80 centimeter. The length of the line is given 25 meter 80 centimeter long. It was extended. Extended means to increase, बढ़ाना. At one end, here we have this line 2 points, first and second. This starting point, this one end point. If you are taking this one starting point, then this will be your end point. It was extended at one end. कोई भी एक साइड से लाइन को क्या करना है? बढ़ाना है. Extended मतलब to increase, बढ़ाना. इसलिए ये पॉइंट से तुम बढ़ाओ इधर या फिर इधर, कोई भी एक साइड से. अब यहां से हम इधर बढ़ा रहे हैं. कितना बढ़ा रहे हैं? यहाँ पर कितना दिया है लेंथ उसका? 14 मीटर 12 सेंटीमीटर. इतना बढ़ा रहे हैं उसका. ठीक है. फिर यहां पर क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग इज इट नाउ. फिर बढ़ाने के बाद और लाइन की लेंथ कितने हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इन दोनों क्या करना पड़ेगा? पहले ओरिजिनल लेंथ इतना देखे था, फिर बढ़ा है. एक्सटेंशन मतलब बढ़ा है, इतना बढ़ा है. तो फिर ओरिजिनल लेंथ व्हाट विल, यहां से हमें यहां तक लेना पड़ेगा उसकी टोटल लेंथ. तो दोनों नंबर को क्या करना होगा हमें? यहाँ प्लस क्या करना होगा? एक्सटेंडेड मतलब टू इंक्रीज, इसलिए उन दोनों का करना है प्लस. सो सॉल्यूशन. सो अंडरस्टूड. लाइन हम नोट लाइन का एक बार भी ड्रॉ कर सकते ग्राउंड में वगैरह, नहीं क्या? या तो उसकी लेंथ दिया है ग्राउंड की. पहले लाइन ड्रॉन ऑन ग्राउंड वाज इतना लॉन्ग. ओके. ओरिजिनल लेंथ हाउ मच? मेक टू कॉलम हियर विच टू यूनिट्स वर गिवन, मीटर एंड सेंटीमीटर. व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द line? 25 meter 80 centimeter. Okay. It was extended. Extended means increase, extension. How much? 14 meter 12 centimeter. So below. Now यहाँ extended है, इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा इनका प्लस. Now 0 plus 2 how much? 0. Start from the right side. 8 plus 1 9, 5 plus 4 9, and 2 plus 1 3. So total length of the line will be 39 meter. How much? 92 centimeter. So understood. Now the line is, here asked how long is it now, means now the line is 39 what meter 92 centimeter. So understood this example. Extension is given there, that's why we have to do plus. So note down this example number first. Example number second, look at what it is given. A road 25 kilometer 802 meter long was extended at one end by 12 kilometer 132 meter. How long is it now? Just like first example, in place of line, in that example line was given there, but here given road. A road 25, the length of the road will be given here 25 kilometer 802. Road in this way, horizontal or vertical maybe. Okay. The length of that road is given 25 kilometer 802 meter long. Was extended. Extended means what? Again, underline extended, increase. So what we have to do? Extended word came, that's why plus. At one end by 12 किलोमीटर. उस रोड को फिर से उधर बढ़ा रहे हैं, कोई भी एक साइड से. फिर बढ़ाने के बाद कितना उसका लेंथ हो गया रोड का, वो फाइंड करना है हमें. सो ओरिजिनल लेंथ हाउ मच गिवन? अगेन हियर टू विच टू यूनिट्स वर गिवन? किलोमीटर एंड मीटर. मेक टू कॉलम किलोमीटर एंड मीटर. Below kilometer you have to write 25 and below meter 802. Now extension. After extension, what is at one end? It was extended by at one end by how much given? 12 kilometers. So below 25 you have to write 12 and below 802 which number you have to write? 132. How long is it now? Then what will be the total length now? So original length given, extension also given. So we have to find what we have to do? Plus. So 2 plus 2 4, 0 plus 3 3, 8 plus 1 how much? 9, 5 plus 2 7, and 2 plus 1 3. Now the total length of the road will be 37 kilometer 934 meter. Now the
road is 37 kilometer 934 what meter. So understood this example. So note down example number second. Now example number third, what it is given, look that a rope is 21 meter 28 centimeter long, a piece 5 meter 14 centimeter was cut out of it. What is the length of the remaining rope? A rope का मतलब क्या होता है, रस्सी, रस्सी होता है रोप यानी, ठीक है। उसकी लेंथ दिया है रस्सी की 21 मीटर 28 सेंटीमीटर, इतना लंबी रस्सी है। ए पीस, जैसे ये रस्सी, ठीक है। ए पीस मतलब रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा वगैरह, कितना है इसका टोटल लेंथ, तो देखे था इतना, कितना था टोटल लेंथ 21 मीटर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पीस 5 मीटर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग वाज कट आउट ऑफ, इतना लेंथ लेके 5 मीटर 14 सेंटीमीटर उसका कट किया गया, जैसा इतना हो गया सपोज, तो ये कितना है 5 मीटर और 14 सेंटीमीटर कट कर दिए। फिर रस्सी की लेंथ फिर बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी, फिर कट करने के बाद उसके इट विल मेक, और रस्सी के दो पीसेस हो जाएंगे, एक बड़ा और एक क्या छोटा। अब यहां पूछा है कट करने के बाद व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, इतना कट करने के बाद इतना कितना बचा है, यहाँ पर रिमेनिंग कीवर्ड, रिमेनिंग मतलब क्या होता है, बचा वाला, बचे वाले रोप का हमें लेंथ फाइंड करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। सो ओरिजिनल लेंथ व्हाट इट इज गिवन हियर 2 यूनिट मीटर एंड सेंटीमीटर 21 मीटर 28 सेंटीमीटर। फिर ए पीस यानी कितना कट किए गए, कट मतलब उसके कितना लेंथ लेके कट किया गया है 5 मीटर 14 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग मतलब डिफरेंस, क्या करना है, रिमेनिंग मतलब इसलिए माइनस आए यहाँ। सो डू माइनस ना, 8 minus 4 how much 4, 2 minus 1 1 minus 5 possible not possible, so make greater number. So cut 1, write 1 as it is, borrow 1 from here. Now in place of 2 it will remain 1. Now 11 minus 5 how much, 11 minus 5 6 and here 1, so 6, कितना बचा है फिर पीस ऑफ रोप कितना बच के रहेगा 16 मीटर 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप यानी रस्सी होता है, ठीक है। रोप इज हाउ मच, क्या आंसर है 16 मीटर 14 सेंटीमीटर। सो अंडरस्टूड दिस एग्जांपल, रिमेनिंग है इसलिए वहां करना है माइनस। सो नोट डाउन दिस एग्जांपल नंबर थर्ड आल्सो। एग्जांपल नंबर नाउ व्हाट 4, ए 49 kilometer 218 long canal was to be built. Out of this 17 kilometer 400 meter have already been built. What is the length of the remaining part of the canal that has to be built? क्या है यहाँ देखकर, ए 49 किलोमीटर 218 मीटर लॉन्ग यानी लंबा कैनल मतलब ए रिवर मेड बाय पीपल, ठीक है। उसमें जो ए रिवर मेड बाय पीपल वाज टू बी बिल्ट, इतना प्लान किया गया था, यानी इतना लेंथ का वो कैनल होना चाहिए था। लेकिन आउट ऑफ दिस 17 किलोमीटर 400 मीटर हैव ऑलरेडी बीन बिल्ट, ये पहले ही बन के था, वहां पर इतना टारगेट था बनाने का, लेकिन उसमें से इतना ऑलरेडी बन चुका था, बन के था कैनल। तो यहां पर पूछा है फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैनल दैट हैज टू बी बिल्ट। फिर यहाँ की वर्ड आया रिमेनिंग यानी बचा वाला, और कितना तुमको वहां व्हाट इज द लेंथ बचे वाले पार्ट का कैनल, यहाँ पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैनल दैट हैज टू बी बिल्ट, और कितना फिर पार्ट उसमें जो बच के उसका लेंथ क्या होगा वो वाला फाइंड करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैनल दैट हैज टू बी बिल्ट, और कितना बनाना पड़ेगा उसमें वो पूछा है। तो सॉल्यूशन ये क्या है, प्लान किया गया है, लेंथ प्लान इक्वल टू इतना लेंथ के वो कैनल तैयार करना था 49, सो हियर 2 यूनिट किलोमीटर एंड मीटर 49 किलोमीटर 218 मीटर 218 वाट मीटर। फिर ये क्या था, ऑलरेडी ये बन चुका था, बन के था वहां, लेंथ ऑलरेडी बीन बिल्ट, ओके, बिल्ट यानी तैयार होके था वहां पर, कितना 17 किलोमीटर 400 मीटर। अब यह क्या पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग मतलब क्या फाइंड करना है, डिफरेंस यानी क्या, इन दोनों क्या करना होगा हमें माइनस, तो फाइंड करना है, इसलिए डिफरेंस लिखे हैं यहाँ पर। अब कर माइनस 8 minus 0 हाउ मच 8, 0 को अगर कोई भी नंबर में से माइनस करेंगे तो कोई भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा बल्कि वो नंबर आएगा।
1 minus 0 again 1. 2 minus 4 possible, not possible. 2 is smaller, so that's why cut 2. Borrow 1 from here. Now in place of 9, it will remain here 8. Now 12 minus 4 how much? 4 से 12 तक जाना है, तो क्या आएगा वहां 8. Now 8 minus 7 how much? 1. And 4 minus 1 3. और 31 किलोमीटर 818 मीटर इतना कैनल और वहां तैयार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसमें. ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ देयरफॉर लेंथ ऑफ द रिमेनिंग देयरफॉर लेंथ of the remaining part of the canal, length of the remaining part of the canal has to be built, is how much? 31 किलोमीटर 818 मीटर. यानी इतना वहां हमको वहां यानी जो बचल व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैनल, उसका लेंथ फाइंड करना था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैनल, इसलिए वहां करना पड़ा, इसलिए माइनस. सो अंडरस्टूड. 31 किलोमीटर एंड 818 मीटर. Now example number 5. A rope was cut into 7 pieces of equal length. What was the original length of the rope if each piece is 23 meter 84 centimeter? मतलब क्या है इसका? A rope यानी फिर से रस्सी was cut into 7 pieces of equal length. उस रस्सी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं. जैसे ये रस्सी है, उसको 7 इक्वल पीसेस में कट कर रहे हैं. जैसे 1 यहां से यहाँ तक 1 2 आप इक्वल लेंथ, और लेंथ भी क्या चाहिए सेम, 3 4 5 6 7. ठीक है, इतने इक्वल पीसेस में क्या कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं. वाज टू बी कट. अब यहाँ व्हाट वाज द ओरिजिनल, अब यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोप. तो फिर 7 इक्वल पीसेस में कट करने के पहले उस रोप की लेंथ क्या है वो पूछा गया है यहाँ पर. व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोप इफ ईच पीस इज 23 मीटर 84 सेंटीमीटर. अब यहाँ से ईच मतलब एक पीस या एक पीस रस्सी का टुकड़ा, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी एक पीस का लेंथ दिया है 20 जैसा 23 मीटर और 84 सेंटीमीटर. इसका भी उतना है, सबका सेम रहेगा. तो फिर ये सबको जोड़ने के बाद ओरिजिनल लेंथ क्या होगा वो पूछा है यहाँ पर. तो क्या करना पड़ेगा, फिर ये नंबर को 23 मीटर 84 सेंटीमीटर को एक तो 7 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, या फिर ऐड नहीं करना है तो फिर कितने इक्वल पीसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 है. तो 7 के साथ उसको क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन. 7 टाइम ऐड करने में टाइम लगता है उसमें ये नंबर को. तो डायरेक्ट हम यानी क्या देखें यहाँ, ओरिजिनल लेंथ या फिर लेंथ ऑफ ईच पीस. ए रोप वाज कट इनटू 7 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ. व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ हमें फाइंड करना है ऑफ द रोप इफ ईच पीस, यानी लेंथ ऑफ ईच का मतलब क्या है, 1 पीस इक्वल टू 23 मीटर 84 सेंटीमीटर गिवन. नंबर ऑफ पीसेस कितना करना है, ये क्या है, नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू कितना है 7. फिर ओरिजिनल लेंथ रोप की फाइंड करना है, तो क्या करना है, 23 मीटर 84 सेंटीमीटर को 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन. अब हम यहाँ इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे. कौन से, विच यूनिट गिवन हियर, 2 यूनिट मीटर एंड सेंटीमीटर. सो मेक 2 कॉलम मीटर एंड सेंटीमीटर. बिलो मीटर व्हाट वी हैव ट्राइड 23 मीटर एंड बिलो सेंटीमीटर 84. multiplying into which number, 7. Number of equal pieces how much, 7. So do multiplication. Now 7 4s are how much, 28. 28 का क्या लिखेंगे हम, 8 carry 2. Understood. Now 7 8s are 56. 56 plus 2 58. 58 का 8 फिर carry आया 5. Now 7 3s are 21. 21 plus 5 26. 26 का फिर से 6 carry 2. 7 2s are 14. 14 plus 2 16. 14 plus 2 how much, 16. So 166 meter. Original length will be 166 meter and 88 centimeter. So what it is asked here, what was the original length? Therefore original length of the rope was how much,
what should be their original length then? 166 meter and 88 what? Centimeter. So understood this example. Here we have to do multiplication. So that's all. So note down this example number 5. Now example number 6, what it is given. A trip of a bus is 12 kilometer, 184 meter long. What distance will it cover in 4 trips? And a trip of a bus, यानी एक ट्रिप, ए मतलब सिंगुलर, ए ट्रिप ऑफ ए बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन वन ट्रिप इक्वल टू, एक ट्रिप का डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर 184 मीटर इतना है. तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 ट्रिप. वो बस अगर 4 ट्रिप्स लेती है तो फिर और 4 ट्रिप्स का डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना है हमें. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन वन ट्रिप या फिर डिस्टेंस इन ईच ट्रिप, ईच मतलब वन ट्रिप इक्वल टू 12 किलोमीटर 184. वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रिप्स इक्वल टू हाउ मच? 4. 4 ट्रिप का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 4 ट्रिप इक्वल टू व्हाट वी हैव टू डू? दिस टू नंबर multiplication. 12 kilometer 184 meter multiplied by what? 4. Why? Because we are going to find the distance covered by bus in 4 trips. That's why we have to do multiplication. Again here 2 units, kilometer and what? Meter. Make 2 column. Below kilometer which number we have to write? 12 and below meter 184. Okay. Now multiplied by which number? 4. Now look that 4 into 4. 4 4s are how much? 16. 16 what we have to write? 6. Carry 1. 4 8s are 32. 32 plus 1 33. 33 का क्या लिखना है? 3. फिर कैरी 3 आएगा. ठीक है. Now 4 1s are 4. 4 plus 3 how much? 7. Now 4 2s are 8 and 4 1s are 4. So 48 kilometer 736 meter. So what you will get here? Distance covered by bus in 4 trip will be 48 kilometer and 736 meter. So what distance will it cover in 4? Hence distance covered by bus in 4 trip. Hence distance covered by bus in how much trip? 4 trips will be how much? 48 kilometer and 736 meter. So note down this example number 6. Example number 7. A rope was cut into 12 pieces of equal length. What is the length of each piece if the rope was 25 meter 68 centimeter long? A rope मतलब फिर से क्या होता है? रस्सी. और रस्सी वाज एक रस्सी है, उसको वाज कट इनटू 12 pieces. That rope has been cut into how many equal pieces? 12 pieces of equal length OB. Then what is the length of each piece? Each piece मतलब एक पीस का हमें लेंथ फाइंड करना है. If the rope was 25 meter 68 centimeter, यानी अगर रस्सी टोटल लेंथ है रस्सी के 25 मीटर 68 सेंटीमीटर, उस रस्सी के कितने इक्वल पीसेस कर रहे हैं? 12. तो फिर एक एक पीस का लेंथ कितना होगा वो फाइंड करना है यहाँ पर. तो क्या करना होगा फिर? इसको 12 मीटर 68 सेंटीमीटर वी हैव टू डू डिविजन, बिकॉज हियर कैन हियर इक्वल लेंथ. दैट्स व्हाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ रोप वाज गिवन 25 मीटर 68 सेंटीमीटर. ओके. नाउ while doing division we have to convert this meter to centimeter. So remove this letter meter 2568 centimeter. ठीक है. Because we know that 1 meter equal to how much centimeter? 100. 25 meter equal to 25 into 100, 2500 centimeter. In that you have to add 68 centimeter. Then you will get 2568 centimeter. ठीक है. फिर number of equal pieces कितने हैं? 12. फिर length of each piece. each मतलब एक एक पीस का लेंथ फाइंड करना है. तो क्या कर रहा है? हमें 2568 सेंटीमीटर को 12 के साथ डिवाइड. अब डिवाइड करेंगे इसको किससे? 12 से. 12 1 जार 12, 12 2 जार 24. 25 के पास नंबर कौन सा आएगा? 12 2 जार 24. Now do minus 5 minus 4 1 and 2 minus 2 what? 0. Okay. Now 12 के टेबल में 1 नहीं आता. फिर नेक्स्ट नंबर you have to take down 6. So again nearest to 16. 12 1 जार 12. Now 6 minus 2 4 and 1 minus 1 what? 0. Now what left here? Again 8. So bring this 8 down. 12 के टेबल में 48. 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48. ठीक है. तो 48 माइनस 48 0. अब इसका यूनिट क्या था? सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये भी किस में आएगा आपका? सेंटीमीटर. 214 सेंटीमीटर. फिर
क्वेश्चन में देखा था मीटर और सेंटीमीटर, तो उसको 214 को मीटर और सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए 2 नंबर छोड़कर लाइन ड्रॉ करो। लाइन के पहले वाला नंबर मीटर, लाइन के बाद वाला नंबर सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2 मीटर 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच पीस इज 2 मीटर 14 सेंटीमीटर। 12 पीसेस किए तो एक पीस का लेंथ आएगा 2 मीटर 14 सेंटीमीटर। सो अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। सो दिस एग्जाम्पल इज डिविजन एग्जाम्पल। Now last question looked at example number 8. Total distance traveled by bus in 5 trips is 59 kilometer 850 meter. What distance does the bus travel in each trip? यानी कितने ट्रिप का डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने ट्रिप का है, 5 ट्रिप्स का। कितना है टोटल डिस्टेंस, 59 किलोमीटर 850 मीटर। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट डिस्टेंस डज द बस ट्रेवल इन ईच ट्रिप। ईच मतलब 1 ट्रिप, तो 1 ट्रिप का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 59 किलोमीटर 850 मीटर को 5 से क्या करना होगा, डिवाइड। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 59 किलोमीटर 850। अब ऑलरेडी मीटर 3 डिजिट में है, तो इसको हम किलोमीटर को रिमूव कर रहे हैं 59,850, बिकॉज वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1000 मीटर। देयरफॉर 59 किलोमीटर इक्वल टू 59 इंटू 1000 मीन्स 59,000 मीटर। फिर 59,000 मीटर में 850 मीटर ऐड करना होगा, फिर उस समय आएगा हमें उसमें 59,850 मीटर। ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने ले रहे बस, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन 5 ट्रिप्स। नंबर ऑफ ट्रिप्स इक्वल टू हाउ मच, 5। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच ट्रिप, व्हाट वी हैव टू डू, डिवाइडेशन। 59,850 मीटर डिवाइडेड बाय व्हाट, विच नंबर, 5। सो अभी इसको डिवाइड करना है हमें, रफ में करने का 59,850 मीटर को किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से। ठीक है। 5 1 जार, नाउ टेल मी 5 1 जार 5 आता है 5 के टेबल में। 5 1 जार 5, 5 माइनस 5 0। टेक नेक्स्ट नंबर 9 अगेन। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। 10 बड़ा होता है इसलिए 5 2 जार नहीं, 5 1 जार व्हाट, 5। सो 9 माइनस 5 हाउ मच, 4। अब क्या लेना है नीचे हमें, 8। 5 के टेबल में 48 के पास वाला नंबर, 48 नहीं आता तो पास वाला नंबर 5 9 जार 45 आएगा यहाँ। 5 9 जार व्हाट, 45। नाउ 8 माइनस 5 हाउ मच, 3। 4 माइनस 4 0। नाउ व्हाट वी हैव टू टेक डाउन, 5। देखो 35 आता है ना 5 के टेबल में। 5 7 जार व्हाट, 35 आता है। 35 माइनस 35 0। एंड लास्टली क्या है यहाँ पर, 0, तो उसको भी लिए 0 नीचे। सो 5 0 जार व्हाट, 0। 0 माइनस 0 0। सो 11,900 व्हाट वी आर गेटिंग हियर 11,970 व्हाट, यहाँ क्या है मीटर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा मीटर। अब हमें मीटर को क्वेश्चन में दिया था किलोमीटर और मीटर, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से। फिर 11,975 नंबर लिखने का। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1000 मीटर। एंड इन 1000 हाउ मेनी जीरो विल प्रेजेंट, 3 0। सो लीव फ्रॉम द राइट साइड, लीव 3 नंबर एंड ड्रॉ लाइन 1 2 3। बिफोर लाइन number will be your kilometer, and after the line whatever number written, that is meter. That means 11 kilometer and 970 what, meter. Therefore what distance does the bus travel in each trip? Therefore distance traveled in each trip is, therefore distance traveled by bus in one trip, otherwise distance traveled by bus in each or otherwise one trip is what is the answer, 11 kilometer 970 what, meter. So understood this example, how to solve the given example. So note down this example number 8. Now homework, textbook page number 241. Let us practice 1.7. Total examples were given there 10, but you have to solve try to solve this example. First, second, third, fourth, 8th and 9. Total example 1 2 3 4 5 6. 6 example you have to try that one. Okay, only 6 example I am giving you. Remaining 4 example I will solve. Which that's first one is a canal
A 5 kilometer 822 meter long canal was extended. Underline extended means what? Plus. At one end by 4 kilometer 132 meter. How long is it now? Extended. Extended. Such type of example, 2 example I solved. Total 8 example I solved. Only you have to complete that 6 example. And remaining 4 example from the textbook. Let us practice 1.7. We will do in next break. Okay. In the same way, second, also a shopkeeper purchased 116 meter 80 centimeter blue ribbon and 223 meter 75 centimeter red ribbon. How much ribbon did he purchase altogether? Keyword there. Altogether means both number we have to do addition. Okay, understood? A road is like that. All example you have to complete. First, second, third, fourth, 8th and 9. So note down this homework also.